جس آئیڈیالوجی کو اسلام کہا گیا ہے، اب آپ ذرا سوچئے کہ اس نے انسانیت کو دیا کیا دیا؟ ہر علاقے میں تباہی پھیلائی. ہاں اگر ہم سچ والا بھائی، اس کی تباہیاں، اس کے نقصانات تو ہم آئے دن ہر وقت ہر جگہ دیکھتے رہے ہیں، لیکن دیا کیا بتائیے؟ یہ فساد ہی دیا جی. ہاں کوئی ایجادات نہیں کی انہوں نے، کوئی ایسا سسٹم نہیں دیا جیسے کارل مارکس نے، ماؤ زے تنگ نے، ابراہم لنکن نے. جی انہوں نے تو اپنے دیکھے ان کے سسٹمز پہ پورے کے پورے ملک چل رہے ہیں، جی سپر پاورز بن گئے. جی کارل مارکس کے گھر میں وہ کہتا ہے میں سوائے 1-2 مہینے ہو گئے میں صرف آلو سے روٹی کھا رہا ہوں. جی اور وہ آج دنیا کی 100 بڑی انفلوئنشل شخصیات میں ہے کارل مارکس. اس کے اوپر جی رشین پوری ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی تھی. ماؤ زے جی تنگ جو سسٹم دیکھے گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ چائنا آج ایک سپر پاور ہے. جی اور ابراہم لنکن نے امریکہ میں ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی. جی ہاں اور ہمیں ہمارے آقا محمد کیا دے کے گئے؟ 72 فرقوں کی بشارت، جی. جس کو ہم پورا کر رہے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر جو ہے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے سبھی سننے والوں کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا. یہ دیکھیں کہ قرآن کے ماننے والوں کا یہ بلند بانگ دعویٰ ہے، یہ جی کھل کر دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام یعنی قرآن ایک نظام حیات ہے دیتا ہے. اس میں ہر طرح کا سسٹم پایا جاتا ہے. یعنی مان لیجیے اس میں سیاسی نظام ہے، اس میں جو ہے معاشی نظام ہے، اس میں جو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے سارے نظام وہ جو ہے اس سے نکال لاتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ جس نظام یا قانون کا نام لے کر یہ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، پہلی بات تو پورے قرآن میں نظام نامی کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اور پورے قرآن میں قانون نامی کوئی لفظ نہیں ہے. جی اور یہ سارے یہ ماننے والے سارے جو ہے اس کتاب سے پتہ نہیں یہ کون کون سی کیا آیتوں سے کیا ادھر کا ادھر اوٹ پٹانگ کر کے جو ہے وہ یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے اس میں فلاں نظام ہے، فلاں نظام ہے. کون سا نظام ہے بھائی؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک کھوٹا سکہ ہے جسے قرآن کہا گیا ہے. جی یہ قرآن نامی کھوٹا سکہ نہ پہلے کہیں چلا، نہ واہ پہلے کبھی چلا، نہ آج کہیں چل رہا ہے، نہ آگے کہیں چل سکنے کا کوئی امکان ہے. میں جی ایک بار پھر دہرا دوں، قرآن نامی کھوٹا سکہ نہ پہلے کبھی چلا، نہ آج کہیں چل رہا ہے، نہ آگے کہیں چل سکتا ہے. سچ والا جی، کہنے کو تو 56 57 58 ان کے جو ہے اسلامی یا مسلمان جو ہے یہ ریاستیں ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کہاں چل رہا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. سچ جہاں والا جہاں جی بات کریں عبداللہ واحد جی پلیز. سچ والا سر. جی، اجازت ہے بات کروں؟ جی 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 فرمائیے. 1400 سال سے یہ جو نظام قرآن والا چل رہا ہے، گمراہی پھیل گئی ہے، لوگوں کو اندھا کر دیا گیا، بہرا کر دیا گیا، تو کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ 1400 ہاں سال یہ تو ہوا ہے. یہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ تو ہمیں نظر آیا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. لیکن یہ جو دعویٰ اس کے ماننے والے کرتے رہے ہیں، یہ آخر کہاں ہے؟ لوگوں کو دعوے کی طرف جانے نہیں دیا گیا. ہاں بس یہی ہے. اور پھر اس معاملے میں جو ہے یہ بھی کہتے ہیں نا یہ لوگ، نہیں بھائی وہ جو ہے اس میں قرآن کا کیا قصور ہے، اس میں تو لوگ جو ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بالکل اس کو جو ہے ٹھیک سے سمجھے نہیں ہیں، اس طرح سے یہ جو ہے نہیں چل سکا. اچھا اب ذرا دیکھیے کہ ایسے موقع پر یہ ہمارے جو ہے یہ ذاکر نائک قبلہ یا پھر ان جیسے جتنے لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے جو نامور جو ہے جو دنیا میں جو دندناتے پھرتے ہیں، ان سب کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ قرآن کو اصل میں وہ کسی مرسڈیز کار سے جو ہے تشبیہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر کسی مرسڈیز کار کو کوئی اناڑی ڈرائیور چلائے اور کہیں ٹھوک دے، جی جی تو اب اس میں قصور مرسڈیز کار کا ہے یا اس ڈرائیور کا ہے؟
जी। तो अब वो जितने लोग वो जाकिर नाइक के ऑडियंस के तौर पर हजारों लाखों जो बैठे रहते हैं, सारे के सारे तालियां ठोकते हैं, अरे वाह भाई क्या मिसाल दिया आपने, क्या एग्जाम्पल दिया। हाँ, बात सही है कि कुरान तो मर्सिडीज बल्कि जो है उससे शानदार जो है बेहतरीन जो है कार है, और इसको चलाने वाले असल में चूंकि समझे नहीं है, वो जानते नहीं, इस वजह से वो ठोक रहे हैं, यानी इसके चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो अनाड़ी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करूंगा, ठीक है भाई, कुरान जो है मान लें मर्सिडीज कार जैसा है और उसको चलाने वाले अनाड़ी हैं, तो एक ड्राइवर बैठा क्योंकि वो अनाड़ी था इसलिए ठोक दिया, चलो वो जी। दूसरा ड्राइवर बैठा वो भी अनाड़ी था इसलिए ठोक दिया, चले भाई ठीक है, तीसरा बैठा वो भी अनाड़ी था इसलिए ठोक दिया। अच्छा, मसला ये है कि ये सदियों से, बल्कि ये जितनी मुद्दत बताई जाती है 1200-1300 साल जो भी है, ये इतनी सारी मुद्दत में इसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों जो है ड्राइवर बैठे और सब ठोकते रहे। जी। तो अब ऐसे मौके पर मुझ जैसा शख्स इनसे पूछेगा कि भाई मसला कहीं ये मर्सिडीज कार ही में तो क्यों नहीं है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगता है जी, क्योंकि जो ड्राइवर बैठा है ठोक रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसे ही है ना, क्योंकि मसला यहाँ ड्राइवर्स का नहीं है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इस किताब में सबसे बड़ा खोट ये है कि न किसी के कपल्ले पड़ी, ना इसको कोई समझ सका, ना कोई इसको समझा सकता है। तो ये मामला सारा मुबहम है, सारा एम्बिगुअस है, इसलिए ना कोई इसको समझ सकता है, ना इस पर कोई अमल कर सकता है, ना इससे कोई नतीजा निकलेगा, ना कोई जो है कोई जो है फल इसकी बुनियाद पर जो है किसी को मिल सकता है, कुछ भी नहीं। सचवाला जी, आप ही की इसी बात और जाकिर नाइक की मर्सिडीज के ऊपर, क्या अली और आयशा वो भी अनाड़ी थे? उनसे भी ये गाड़ी मर्सिडीज नहीं संभाली गई और दोनों जंगे जमल में लड़ पड़े? उसकी जो है ये, अब ये क्या कहें, ये हजरत की जो है मैं नाम बिगाड़ कर जो है उनका नहीं लेना चाहता, तो अब ये इनकी इस एग्जाम्पल के बेस पर तो अली और आयशा जिसे कहते हैं, अगर वो वाकई कोई थे तो वो भी अनाड़ी थे। मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे मैं गल्फ कंट्री के अंदर रहता हूँ जी, तो यहाँ पर मैंने कभी कोई कट्टरता वगैरह नहीं देखी जी, और यहाँ पे जब भी इनकी जो नमाज वगैरह जो भी होती है वो पढ़ के ये मस्जिद को बंद कर देते हैं। कोई हुक्म या कोई वो जो भी इसके बाद में रिचुअल्स होते हैं या कुछ अच्छी बातें बताते हैं या बुरी जो भी है, इतना इधर जोर नहीं दिया जाता, बस नमाज हुई और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो खुद पढ़ो, ऐसा कुछ मैंने देखा भी, फील भी किया है। और सब लोग पैसे कमाने के में और आगे बढ़ने में ही लगे हुए, बिजनेस के अंदर ही लगे हुए हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने सीखा है अभी तक, ये इन सारी चीजों से जो आप बताते हो और भी लोग बताते हैं, तो इन चीजों को कितना जोर दे के हमारे देश में बताया जाता है, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब ये जहाँ मस्जिद होती है, चाहे पर्सनल हो, चाहे ग्रुप में हो, चाहे कोई त्योहार हो, ईद हो या फिर कुछ और भी हो, फ्राइडे हो, तो ये जैसे जिहाद हो गया, उम्मत का कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, मैं आ गया आपका पॉइंट, मैं समझ गया। जी, आप ये कहना जी, चाह रहे हैं कि जितने कट्टर जो है यहाँ हमारे ये इस एरिया में, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में लोग होते हैं मुसलमान, जी, जी, वो जी, खुद अरब जहाँ से ये इस्लाम की शुरुआत हुई वहाँ पर ये इतनी कट्टरता नहीं पाई जाती, आप ये कह रहे हैं ना? जी, जी, जी। हाँ, तो अब देखें कि इसको एक तो इसका जवाब ये हो सकता है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, ये कह सकते हैं। जो जी, असल जिसको वफादार होना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन कोई दूसरा इसकी वफादारी कर रहा है। जी, इसकी चमचागिरी करने में जो है ये हमारे एरिया के मुसलमान ज़्यादा आगे हैं, पहली बात जी, तो ये है। दूसरी बात यह है कि चूँकि ये लोग जो अरब से जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग इस दीन को, इस मज़हब को जो है उनकी लैंग्वेज में होने की वजह से उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो यहाँ हमारे लोग जो है अरबी के नाम से ही जो है ये लोग उतावले पड़ जाते हैं, अरब अरब अरब, हर मामले में अरब की जो है उनकी कॉपी करना, उनकी नकल करना, हर जो है नाम भी अपने यहाँ मुसलमान जो है अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं तो अरबी नाम रखते हैं, अरबी नाम रखते हैं, समझिए ना, हर एंगल से जो है वो अरबों की जो है ज़हनी ग़ुलामी जिसे कहा जाता है
तो जो जितना ज़्यादा अरबों का ज़हनी ग़ुलाम है वो उतना बड़ा मुसलमान है जी। तो अपने एरिया का ये जो है जो मुसलमान है उनका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन क्या किया जाए, ये लोग इनकी ज़हनी ग़ुलामी जो है ख़त्म भी तो नहीं होती ना। और सच वाला जी, जैसे मैं मेरी पर्सनल सबके ऊपर बात नहीं कर रहा, पर्सनल बात करता हूँ। मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना, इस कम्युनिटी को लेकर। तो क्या ये स्वाभाविक है या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ? किस टाइप के चेंजेस कह रहे हैं आप? मुझे जैसे मौला मेरे मौला गाना जो था सॉन्ग, मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं कोई कव्वाली नहीं सुनता। मैं कोई ऐसे इनके वीडियोस यूट्यूब पे आ जाते हैं जिसमें वो जो इस्लामिक चैनल है उनको मैं नहीं देखता। पहले देखता था, मैं सुनता था वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बट अभी नहीं देखता मैं। और मेरे फ्रेंड लोग हैं, उनसे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, उनसे उनको बताता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि यार हमने तो पढ़ा, हम इतना नहीं जानते यार। तो मतलब ये मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है, ऐसे कई लोगों में भी चेंज आ रहा है। मतलब ये चेंज ठीक है, स्वाभाविक है, या हमको किस लेवल तक रहना चाहिए? क्योंकि ये हमको साथ में भी तो रहना है ना। कोई वैसे इनको एक बाहर। बात याद रखिए दोस्त कि देखें जी कि जितने मुसलमान हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से जो है कभी भी कोई नफ़रत, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, असल जो प्रॉब्लम है वो है आइडियालॉजी। जी जिस आइडियोलॉजी के कारण ये मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी रेडिकल हो जाती है, उस पर आप बात कर सकते हैं, उसके जी बारे में आप सीरियस हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर अपने मन में कोई मन मुटाव रखना या जो है वो क्या कहते हैं नफ़रत वाला जो है कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी हमारे भाई हैं, हमारे देश के जो है नागरिक हैं, उनका भी उतना ही राइट है जो किसी और का हो सकता है। लेकिन इस आइडियोलॉजी ने इनको पागल कर रखा है इनकी। जी तो इस पर जो है हम चर्चा कर सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। ये मामला बिल्कुल ऐसी है कि आप किसी मरीज़ से तो नफ़रत नहीं करते ना, वो मरीज़ के पास जो मर्ज़ है, जो बीमारी है, आप उसको लेकर चिंतित रहें। लेकिन जो बेचारा बीमार है उससे क्या नफ़रत करें। अब ये मुसलमान बेचारों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ये अरबों के ज़हनी ग़ुलामी की बीमारी में मुब्तला है। क्या किया जाए? जी। तो अब और हम सब वही तो कोशिश कर रहे हैं ना कि भी इनकी ये बीमारी जो है दूर हो। ये कट्टरता अगर ख़त्म होगी तो हमारे समाज में बदलाव आएगा, जो है जो पॉजिटिव जो परिवर्तन आएगा, तो ये इसी से हमारा विकास होगा। वरना ये कम्युनिटी जो है ये इस आइडियोलॉजी के कारण बहुत पिछड़ गई है, सबसे पीछे है। जी ये बात है। मैंने सुना कहीं कि जिहाद मतलब यदि आप गैर मुस्लिम हैं और मुसलमान आपको दावत देता है और आप उसको कबूल नहीं करते हैं तो वह मुसलमानों पर आप जुल्म कर रहे हैं, और इसके लिए आपसे जंग करना मुसलमानों के लिए जायज़ है या फर्ज है। क्या यही है डेफिनेशन उसका, जिहाद का? यदि आप मुसलमान नहीं बनते तो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और जालिमों को मारना जायज़ है, यही जिहाद है। लेकिन जिहाद का मतलब होता है जिस दीन को अल्लाह ने या उसके रसूल ने ज़मीन पर भेजा, उसको फैलाने के लिए जो कोशिश की जाती है उसको जिहाद कहा जाता है। जी समझिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह का भी अर्थ यही है कि अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना कि उसका दीन जो है किस तरह से इस ज़मीन पर एक्टिव हो जाए या फिर जो है इसकी डोमिनेशन हो जाए। अल्लाह का दीन इस ज़मीन पर कैसे डोमिनेट हो, इसकी कोशिश करना जिहाद कहलाता है। मतलब तो यहाँ पे गलत बताया गया है कि जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहा है उसके साथ जंग करना जिहाद है, यह गलत है मतलब। हाँ, ये बात भी सही है, स्वीकार नहीं करना बात वही है ना कि अब जैसा जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो तो खैर मुसलमान कहलाते हैं, जो नहीं मानते उनके अगेंस्ट या पहले तो उनको बोलना कि यार जो है तुम भी मान लो, इस्लाम को जो है स्वीकार लो। अगर नहीं स्वीकारते हैं तो उनके अगेंस्ट में जो भी काम किया जाएगा वो जिहाद कहलाएगा।